Then I welcome here Professor Pinky Kotwal, all other students who are present here. Wildlife is very important for us. To celebrate this week, it just gives us that the important with respect to our fodder, with respect to our inspiration, with respect to our recreation, and with respect to our medicinal plant, which is 15 in number. There are 17 goals, and under the goal 15, the wildlife is very important. So I also welcome Dr. Mushtaq here, who is joining us. The wildlife, it is very important for us. At this time, the world is facing 3 different wars. The wars of Russia and Ukraine and other 2 wars. I would like to request Professor Dr. Ejaz Ahmed Wali, the resource person for the day. He will be delivering the talk on the related topic, the wildlife conservation. Please, sir, join us. Dear Dr. Mushtaq Sahab, Yasin Sahab, dear colleagues, we have the representatives from the Forest Department, Wildlife Department, Doda, Wildlife Protection Division, Kishtwar, Doda, and dear students. Good afternoon to all of you. Today we are here with the objective to celebrate the Wildlife Week. Now the here question arises why we are here, why we are celebrating the Wildlife Week, in spite of the fact that there are so many man-wildlife conflict. आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग पढ़ते भी होंगे सोशल मीडिया पे। पिछले दिनों में बेयर ने अटैक किया था, लिपर्ड अटैक करते रहते हैं, एंड उसके बावजूद भी not only in India but throughout the world, most of the experts, scientists from the different regions of the world, they are focusing on the conservation of the wildlife resources throughout the world. The question here arises why. Before going to discuss all these aspects, wildlife hota kya hai, what are the reasons that leads to depletion of the wildlife resources in our in Indian continent particularly, then how we have to manage, how we have to conserve or protect our wildlife resources, and what is the theme of this present जो हम आज celebrate कर रहे हैं 2023, इस साल का theme क्या है और उस theme का objective क्या है. So when we talk about the wildlife, basically wild animals, wildlife एक अलग सा एक हमारा topic है, एक अलग सा एक sphere है, एक अलग सा part है. Wild animals, wildlife includes all those animals, plants, and even the microorganisms. They are being included in this category, which can be neither cultivated nor domesticated. So ऐसे animals को हम wild animals कहते हैं, wildlife कहते हैं. It is not only restricted to the animals only. Of course, there are the plants also which can be included under this category, and even the microorganisms are included under this category. And why this day is being celebrated? क्यों इस दिन को मनाया जाता है? आप देखते हो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी डे है, we celebrated the AIDS day. Different days are being celebrated throughout the year. The objective of celebration of these days is only to aware the people, to aware the masses, to aware the people regarding the objectives of the celebration of these days. इसलिए हम दिन को मनाते हैं. So as far as the Wildlife Week is celebrated, of course this week is being celebrated from 2nd of October 2nd of October to 8th of October. और coincidence यहाँ पे देखो क्योंकि 2nd अक्टूबर को हमारा गांधी जयंती होता है. अगर आप गांधी जयंती देखोगे, उसके जो प्रिंसिपल्स थे, वर्किंग प्रिंसिपल्स उनके थे, वो नॉन वायलेंट थे. He was non-violence. He worked on the basis, he worked on the principle of non-violence. एंड उनका जो लाइफ, जो उनका प्रिंसिपल जो था वो ट्रूथफुलनेस था उनके लाइफ में. और नॉन वायलेंट, अगर जब हम नॉन वायलेंट रहेंगे वाइल्ड लाइफ की तरह, कुदरती सी बात है, इट इज नेचुरल दैट कि वो भी जो है ह्यूमंस को अटैक नहीं करेंगे. सो दिस डे इज बेसिकली बीइंग कंसेप्चुअलाइज्ड फ्रॉम 1952. 1952 में यूएन में एक रेजोल्यूशन पास होता है यूएन असेंबली में. वहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव के लेके कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसका एक वाइल्ड लाइफ भी एक कंपोनेंट है, उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व करें, उनको हम प्रोटेक्ट करें. तो 1952 में ये रेजोल्यूशन पास होता है. 1952 ऑनवर्ड्स जो है देन वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग दिस डे विद द ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू अवेयर द masses, we have to aware the students like you people, and during this day throughout the country, throughout the India, different workshops, सेमिनार, सिम्पोजियाज, उसमें फिल्म्स वगैरह दिखाई जाती हैं.
बच्चों को, because students are the best ambassadors to take this message from the institutions at their respective level. आप बेस्ट एम्बेसडर्स हो इस मैसेज को लेने के लिए, बिकॉज अब आप बताओगे सर वाइल्ड लाइफ क्यों, अगर हम हमारा इतना नुकसान कर रहे हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स, एवरी एनिमल, एवरी पार्ट, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट जो है, they are the integral part of with each other. They form a complex system. That complex system is called as food chain and food web, and they are interrelated with each other. अगर उनमें से उस कंपोनेंट में से एक भी डिस्टर्ब हो गया, that will leads to the ecological imbalance. So it is pertinent for we people, being a student of science, हमारे लिए जरूरी है कि हम इस मैसेज को डिसेमिनेट करें आगे, और आप उसका सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है, बिकॉज यू आर द एम्बेसडर्स of the institutions to take this message to their respective levels. लोगों को आप लोगों को अवेयर करने का काम है कि हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों प्रोटेक्ट करना है. सो बीइंग इंडिया, अगर आप देखोगे, वी आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. इंडिया जो है माना जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. वी हैव सर्टेन रिच रीजन्स इन द इंडिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पे रिच माना जाता है, और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उसके बावजूद भी देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ थ्रू आउट द कंट्री. आज अगर आप देख रहोगे हमारे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो है डिप्लीट हो रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स को किल किया जा रहा है, एंड एज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द विलेजेस, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टाउन, एंड दिस लीड्स टू द मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट. इसकी वजह से मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है. और अगर आप पास्ट में देखो, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, अगर हम पास्ट में देखें तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट लीड्स टू द डिग्रेडेशन, that leads to the destruction of the wildlife. For example, volcanic eruption is there, forest fire is there, then the periods of rains and droughts are there. उसके अलावा जो है आइस एज जो थे, ये पुराने फैक्टर्स जो पुराने वक्त में जब बात करें, ये इन फैक्टर्स की वजह से, इन कारण की वजह से बहुत सारे वाइल्ड लाइफ जो हमारी थी that gets extinct, वो आज हमारे पास मौजूद नहीं है. लेकिन आज अगर आप देखोगे, आज के वक्त में आप देखोगे, there are so many factors that leads to the degradation of the wildlife. बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आज के वक्त में मॉडर्न टाइम में वाइल्ड लाइफ जो है डिस्ट्रॉय होती जा रही है. फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ हैबिटेट एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एंड दिस इज ड्यू टू द अर्बनाइजेशन. आज अगर आप देख रहे हो, वी आर बिल्डिंग द डैम्स, वी आर बिल्डिंग द रोड्स, वी आर बिल्डिंग द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, और वो कहाँ पे हो रहा है? बिकॉज लैंड स्पेस हमारे पास इतनी है. जब लैंड स्पेस हमारे पास इतनी है तो जो फॉरेस्ट है विच आर द होम ऑफ द वाइल्ड एनिमल, जो वाइल्ड जंगली जानवरों का घर था, वी आर डिस्ट्रॉइंग सच देयर हैबिटेट, एंड एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि जब उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो, कहां की तरफ आ रहे हैं? दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज, दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द विलेजेस. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन, that is the habitat destruction and habitat loss, that is which is one of the most important you can say the factor in the present era. Then second is the, for example, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूरोपियन ग्रे पार्टरिज एक बर्ड थी जिसको हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से उसका पूरा का पूरा हैबिटेट जो है दैट गॉट डिस्ट्रॉयड, एज अ रिजल्ट जो इस वक्त जो है सारा का वो बर्ड जो पाई नहीं जाती है. Then the little bastard is there, turtle doves are there. So these are the certain examples. आप देख रहे हो, हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने we got the चीता from the Namibia, अफ्रीका से लाया, but उस यहाँ पे लाके भी उसको suitable habitat नहीं है और उसके बावजूद भी उनकी deaths हो गई. That project was not successful. वो project successful नहीं था. To some extent it was there, of course, but that was जो 12-13 चीता लाए थे, उनको जो यहाँ पे suitable habitat ना मिलने की वजह से that leads to the death of the certain cheetahs there. So this is the reason why we have to protect our, yeah, there are certain animals, कुछ animals ऐसे हैं जैसे मस्क डियर आपके पास है. मस्क डियर का शिकार किया जाता है, उसका उसमें एक मस्क ग्लैंड होता है और वो मस्क ग्लैंड जो है वो मिलियंस में बिकता है. दैट कैन बी, सो फॉर दिस पर्पस उस मस्क डियर को जो है किल किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पिछवाड़ा एल्टीट्यूड नेशनल पार्क में मस्क डियर पाया जाता है और उस मस्क डियर को किल करने के लिए जो है वो उसका शिकार करके उसे मस्क ग्लैंड निकालते हैं. दे कैन दैट कैन बी शिकार करते हैं, उसको हंट करते हैं. सो देयर आर सो मेनी पीपल्स जो उनको हंट करते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं, बर्ड्स को हंट करते हैं, रेप्टाइल्स को हंट करते हैं. परसों ही मैं एक सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि एयरपोर्ट पे एक बंदा था, उसने कहा दैट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. हम क्या कर रहे हैं आजकल तो साइंटिफिक बेसिस पे हम जो भी फॉरेन स्पीशीज ला रहे हैं, लेकिन पहले वक्त में क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन स्पीशीज लाने के लिए, कोई भी नई स्पीशीज जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वी लुक बोथ प्रॉस एंड कॉन्स, हम दोनों चीजें उसके देखते हैं. अगर हम इस स्पीशीज वेदर इट इज प्लांट और एनिमल इनटू द
into an area, whether it will not impact on the native species. PG Department of Chemistry, GDC Bhaderwah. उसके बाद हमारी सेकंड डॉक्टर फिजिक्स एंड डॉक्टर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी से हमारी थर्ड जज बनेंगी आज के दिन के लिए। और हमारे आज के स्पीकर्स हैं अमजद लतीफ़ प्रेजेंट हैं, जुबैर अहमद, शीतल राना, शगुफ्ता बानो और अस्मा शेख. All the speakers are requested to kindly note the timing will be 5 minutes. First bell will be ringing at 5 minutes and you have to compile your or conclude your talk within 1. क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे, सजदा करें. Teachers, students, my dear friends, first of all, I wish you a very happy and healthy good afternoon to all of you. And Assalamu alaikum. I'm Aisha. As you know, I am student of BSc Sem 5. As you all know why we are all gathered here today, but still I would like to explain that today we are going to celebrate Wildlife Week. And on the occasion of this great day, I got opportunity to participate. Have the courage to do something bigger, to do something different. ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया फॉर फ्यूचर जनरेशन. The Wildlife Protection Act of 1972 provides a legal framework for the protection of various species of wild animals and plants, management of their habitats, regulations and control of trade in wild animals, plants and products made from them. Animals and plants are to be protected from harm as they are important in balancing the ecosystem. With wild animals already gone extinct and getting increasingly endangered due to extensive poaching and hunting, we have no right to intrude into their life's habitat and pose any danger to their lives. Now I am concluding my topic again with some lines. Accept the challenges. The moment you stop accepting the challenges is the moment when you stop moving forward. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का टॉपिक जो है हमारा वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन है, क्योंकि सर हमारे सर्स ने अभी तक बताया कि वो हमारे लिए जो आपने सुना सारा उससे बढ़कर हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा बहुत बता दूँ. वाइल्ड लाइफ वीक जो है कंसेप्चुलाइज, इसको मतलब एक कंसेप्चुलाइज किया गया था इसको 1952 में, फिर बाद में 1955 में इसका मतलब वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया, नॉट वीक. फिर 1957 में ये पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाने लगा. अब सवाल उठता है कि हम क्यों मनाते हैं वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन जो है, क्यों होती है, हमारी मतलब क्या ज़रूरत है. एक इंसान जो है वो कोई भी काम है ये जो है एम, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम जो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है. देखा जाए जैसे हमारे पास प्लांट जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर, हम डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि प्लांट जो है वो किसी के मतलब वो ऑटोट्रॉपिक है, हमारा मूड जो है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. मीन्स मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस बताना चाहूँ. बैलेंस, एज वी ऑल आर साइंस स्टूडेंट्स, तो हमें पता है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है. अगर हमारे पास हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपनी मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमारा इकोलॉजिकल जो है इकोलॉजी वो बैलेंस में रहेगी. लेकिन अगर हमने अपने ग्रीडी पर्पस के लिए करा था वो जो है एक्सटेंड हो गए, लेकिन जो प्रे थे उनके, जैसे हम देखते हैं कि डॉग्स कितने हैं, मतलब कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों को कि मतलब इतने डॉग्स हैं कि रात को सोना नहीं बन रहा है. तो ये जो है हमारे पास क्या है, किसकी वजह से, इनकी जो भी चीज़ होती है वाइल्ड लाइफ से मिलते हैं, बहुत सारी डिजीज़ को मतलब क्योर करते हैं.
हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज जो एंडेंजर्ड है, जैसे हमारे पास हार्मफुल डियर है, वो हमारे पास स्टेट एनिमल है, लेकिन हाई रिस्क, वो रिस्क पर है। मैं एजुकेशन जो है, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज एक्वायरिंग नॉलेज। अब ये जो भी हमने अभी तक सुना, सर से सुना, फ्रेंड्स ने बताया, मेरी बहन ने बताया, तो इसको always thinks of the sustainable development, the sustainable future for the community. Just in 2000, we started Millennium Development Goals, where we talked of poverty, hunger, inequities, and on the basis of success of such goals, in 2015, we adopted 17 Sustainable Development Goals. And among these 17 Sustainable Development Goals, including the poverty, hunger, education, life on the land and life in the water, as well as action on the climate and many other, that is the wildlife. And all you spoken here, all you participated here, and all you said that yes, we have to perform our duty, we have to save, we have to act accordingly so that we can ensure better future, so that we can ensure the balance. It is only the idea, if this symposium, if this seminar, if conferences like this, if events are like this are nice, if the students are participate, they do participate in such events, if the talents are displayed here, different students come here and they speak Department of Zoology, and I would like to thank all the students who participated in this event. Thank you. ये है वो बेमकसद पैदा नहीं किए, वो बेगरज पैदा नहीं की गई है। हम इंसान, हम भी हैवानात के ज़ुमरे में आते हैं। हमें समाजी हैवान कहा जाता है, हैवान नातिक। जमादात से लेकर, नबातात से लेकर, हैवानात से लेकर, इस फजा से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई। मगर अफसोस, इंसान, जानवरों की जो पनागाहें थी वो हज़रत इंसान ने ख़त्म की। वो जानवर, उनके रहने का ठिकाना ख़त्म हो गया। जब उनके लिए जगह नहीं बची तो वो इंसानी आबादी में आ गए। तो परिंदों को अलग, हवाई परिंदों को अलग, खुशकी के परिंदों को अलग रख लीजिए। आज देख लीजिए, आप किसी भी आप पार्लियामेंट में जाएं, सबसे ज़्यादा बजट होता है इंसान को मारने के लिए। आज की तारीख में आप देखिए, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया, बाकी मखलूकात वो भी खत्म हो गई। जब इंसान खत्म होंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे? जब जानवर खत्म होंगे तो इंसान कहाँ रहेंगे? तो ये तवाज़ुन जो है ये बिगड़ता जा रहा है। इस तवाज़ुन को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ जो है वो इंसान का है। हमारा थर्ड प्राइज अनाउंस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे डिग्नेटरीज, यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी कम है। शगुफ्ता, आयशा, इनके दो नाम है आई गेस, क्योंकि उन्होंने पहले शगुफ्ता लिखा है, बाद में आयशा। जोरदार तालियों के साथ Second prize is Mr. Zubair Ahmed. And the winner of the first prize for the day is Mr. Amjad Latif. Thank
हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनके राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सभी ग्रुप फोटोग्राफ। तीसरा कहाँ गया? उनको